This Yeah, thank you, conference will Vijay ji. now be recorded. Thank you for reminding me. Yeah. So these whole presentations were created by students, and during last 6 presentations, you have seen that we have discussed several broader indices. If I am not wrong, since last Friday, 6 Fridays we have discussed, right? We discussed several broader indices which were created by students. We discussed some themes, and now is the time to discuss Nifty. These were the presentations made by students across the country, and I was so happy to see their research. Yeah, wonderful research by everyone. Students were guided by Mr. Jay Kishan ji. So, धन्यवाद आपका जय किशन जी, that you spare your time. I think all 1 month we have invested in these result updates. So, thank you very much on behalf of all the students. To Mr. Hanumesh ji from Bengaluru, धन्यवाद आपका भी हनुमेश जी, जो आपने समय निकाल के आपके स्टूडेंट्स की क्वेरी को सॉल्व किया और वो लोग प्रेजेंट कर सके. सो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग. मिस्टर आशिम किरतूनिया, यस आशिम, देखो एग्जैक्ट 1 साल हो गया, 12 महीने पहले हम जयपुर में मिले थे, राइट? यू वर देयर इन जयपुर मीटिंग एंड आपने बढ़िया ग्रोथ किया, बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हो, और आपने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन किया. वंडरफुल. ऑल सारे तीनों टीचर्स के लिए मैं चाहूंगा, हम सब लोग ऑनलाइन मीटिंग में ताली तो नहीं बजा सकते, लेकिन उनको धन्यवाद जरूर कर सकते. यू कैन यूज योर चैट बॉक्स टू थैंक्स टू ऑल दिस टीचर्स who spared their time, so that today we are with data, right? Good, and thank you. So these all were the students who have created the data. ये सारा डेटा आप सबको मिल जाएगा, right? As all data has been created, this whole data will be given to you all, so that you can take benefit of this data, right? So again, thank you to each and every students who invested their time. Very, very good. Wonderful to everyone. Today, we are going to discuss growing industries. अब आप लोग सोचोगे ये growing industries के डेटा आए किधर से? From where we are able to know which are growing industries? Now this is the time, a challenging time. ये आसान समय नहीं है. क्यों आसान समय नहीं है? Because we all are taking our journey. We all are moving towards the which road? Untraveled road. क्या हम में से किसी ने पहले पैंडेमिक जैसी सिचुएशन देखी थी? नो. क्या हम में से किसी ने ये सोचा था कि हम 2 महीने तक घर में रहेंगे? नो. You have thought any time that in India businesses would be closed for 45 days? How is this possible? लाखों लोगों की डेथ हमने नहीं सोचा था. तो हम एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो एक अनट्रैवल्ड है. यस, कई चीजें पहली बार हुई है, तो ये रिसर्च में कठिनाइयां करती है. आप लोग सोचते हो हम कहां जा रहे हैं? How these businesses are going to perform during this pandemic? Businesses can perform good and which businesses will struggle? Let me tell you, today's data will help you in this thing. Growing industries पे जो बात रखेंगे आज, ये वही डेटा से कलेक्ट की गई है जो सारे स्टूडेंट्स ने बनाया है. So thank you to all the students who have created this data. And Nifty 50, we are going to discuss how Nifty 50 is performing. The companies which are in Nifty 50, what are their sales, what are their profits, how they are growing, and what we are expecting. In coming 3 months, which company will be out of Nifty, and in coming 3 months, which company is going to enter into Nifty? In coming 5 years, which companies, which small companies are going to become big?
and which big companies are going to leap to giant. Let us study this data. ये डेटा क्रिएट करने में जो जिनका बड़ा योगदान है, ये है डॉक्टर मिलिंद बिडवे. आई मेट डॉक्टर मिलिंद बिडवे इन दिल्ली. और ये जो फोटो आप लोग देख रहे हो, ये वही मीटिंग का फोटो है. मिलिंद बिडवे जी का हाथ डैनी के कंधे पे है, मैं देख रहा हूं, डैनी वर्गीस. और देखो डैनी भी पुणे आ गया. हाँ मिलिंद भाई, अभी आप किसी और पे के कंधे पे हाथ रखोगे तो लगता है वो भी पुणे आ जाएंगे. हाँ वंडरफुल. Yes, sir. I really, मिलिंद भाई, enjoyed this meeting with you. और सफर हमारा बहुत सुहाना रहा. तो वेलकम मिलिंद भाई, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा. You can unmute you. yourself. Thank you, Yeah. sir. And before we talk with संदीप भाई, Yes, sir. मैं आपका अनुभव चाहूंगा कि आप Yes, sir. कैसे आगे बढ़ रहे हो. और ये डेटा बनने के बाद, ये डेटा बनाने में संदीप भाई, मिलिंद भाई, बहुत सही में मेहनत तो होती है, राइट. मुझे, मैं इस दौर से गुजरा हूं तो मुझे पता है कितनी रातें लगती है. और Yes, देखो sir. आपके स्टूडेंट्स ने सब बनाया. Yes, sir. मैं आपके Yes, sir. कुछ दो शब्द इसके ऊपर चाहूंगा. यस Yeah. Yes, sir. Good evening, friends. Dr. Milind Bidwe from Pune. I'm investing in stock market since last 12 years approximately. अभी जो डाटा Q1 का बनाया था हमें, तो उसमें जबरदस्त जो मेहनत लगी है वो संदीप ने की है एक्चुअली. मैं उसे डाटा मास्टर ही बोलूंगा, क्योंकि कई रातें खराब करके संदीप ने ये निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का, एंड यू कैन इमेजिन कि 40 साल का डाटा भी कुछ कुछ कंपनियों का उन्होंने बनाया है. और मिनिमम तो 10 15 20 साल का तो सब बनाते ही है, लेकिन सिंस इंसेप्शन एंड ऑल एनुअल रिपोर्ट्स का पूरा निचोड़ निकाल के संदीप भाई ने ये जबरदस्त काम किया है. देन अगेन जब ये एक्सरसाइज चालू हो गई थी, मुझे शुरू में बहुत अट्रैक्शन था कि सर इतना सारा डेटा कैसे ये कर सकते हैं. मतलब कोई भी, मैं अगर सर का ऑनलाइन भी था अभी ये रिजल्ट रिव्यू मीट, तो इतना डाटा, इतनी तैयारी, ये सब देख के मुझे आश्चर्य लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई एक आदमी इतना कैसे कर सकता है. लेकिन जैसे अभी हमने ये पूरे महीने में 7-8 लोगों ने मिलके जो भी किया, डाटा बनाया, तो सच में थैंक्स टू पीयूष सर, क्योंकि ये डाटा बनाना बहुत मुश्किल और एक्चुअली मेहनत का काम है. मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है इसमें. तो सभी स्टूडेंट ने जबरदस्त मेहनत की. इसके दरमियान जो हमें क्वेरीज आई, वो सर ने हमें सॉल्व की. और इसमें जो सीखने को मिला, मैं आई कैन से कि लास्ट 1-2 साल में जितना मिला, उससे एक महीने में मैं ज्यादा सीख पाया. तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अगर कोई कंपटीशन में या पार्टिसिपेशन करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है. क्लासरूम टीचिंग एंड ये टीचिंग में बहुत फर्क होता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेरीज आती है. तो इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड ड्यू टू पीयूष सर वी आर एबल टू लर्निंग वेरी फास्ट. मैं अगर पिछले 10 साल का ग्रोथ देखूं और पिछले 1 साल का ग्रोथ देखूं, जैसे हम कंपनियों का देखते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा CAGR पिछले 2-3 साल से जबरदस्त बढ़ गया है लर्निंग का. So all thanks to Piyush sir, and I will hand over to sir only again. या मिलिंद भाई, जर्नी Yes, sir. आपके साथ बहुत अच्छा हमारा भी रहा, एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू ऑल आर ग्रोइंग. मैं आपके साथ और जो व्यक्ति जिन्होंने ये डेटा बनाने में हेल्प किया है, दैट इज संदीप वागुले. Yes. तो लेट मी वेलकम मिस्टर संदीप वागुले ऑल्सो. अब now how I met Sandeep, actually we were in the Bangalore meeting. So during the Bangalore meeting, मेरे को प्रसाद ने बताया सब संदीप is going to come from Pune. So I asked him, यार इतनी दूर पुणे से कहाँ इधर बैंगलोर के मीटिंग में आएंगे, why he is coming to Bangalore? क्योंकि देखो whenever you are traveling it is costly. आपको पैसा फ्लाइट का होता है, you have to stay at some hotel, right? So this all इंक्रीज कॉस्ट. और मुझे भी बहुत दुख होता है कि खुद ये बेकार में क्या ये सब खर्चा होता है. बट संदीप केम फ्रॉम सो लॉन्ग, पुणे टू बैंगलोर, ही लर्न. और रियली आई एम अमेजिंग, ही इज अ डेटा गाय. उनकी स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट पे वो बहुत अच्छे है. इज डूइंग हिज जॉब इज इन यूनिवर्सिटी इन पुणे. सो लेट मी वेलकम संदीप. संदीप, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? थैंक यू सर, थैंक यू. ये सब जो कुछ हुआ है, मतलब आपकी मेहनत के साथ साथ
आपके गाइडेंस में भी मतलब हमें इस रास्ते पे लाया है। थैंक यू फॉर सर। संदीप भाई, आपकी और मिलिंद भाई की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज काम लगे, मैं ये चाहूंगा। राइट संदीप भाई? नो प्रॉब्लम, Yes. नो प्रॉब्लम Yes, सर। sir. यस Okay. So let us move towards our topic. Yes, I sir. will यस request everyone. See, today's meeting by Milind Bhai and Sandeep Wagle, they are going to present in Hindi, but data are in English. If you have any query, you can note it down and you can ask during presentation. But after the meeting, the whole data would be given to you, and this data will be helpful, right? So, Milind Bhai, should I make you presenter? Yes, sir. Yes, please. Yeah. Okay, just a minute, because you are going to present, right, Milind Bhai? Yes, sir. Yes, From sir. your laptop. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, Milind Bhai, you are a presenter now. Sir, is screen visible now? Yes, yes, your screen is visible. Sir, echo is there. Echo is there. Hello. Hello. Milind Hello. Bhai, you can proceed. Okay, Sandeep, you can start. Do you want to Hello. show me Nifty data? नो नो ठीक है, इकडनं स्टार्ट करू आपण काय हरकत. Okay. हाय, Yes, yes. मैं संदीप वागुले हमारे मेंटर डॉक्टर मिलिंद बिडवे जी के साथ प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम निफ्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से हमारे प्रॉफिट फैमिली का अलग अलग इंडाइसेस पे रिसर्च अभियान शुरू हुआ था और उसमें हमारे गाइड मिस्टर पीयूष सर जी और मेंटर डॉक्टर मिलिंद बिडवे जी के गाइडेंस में हमारी 3 टीमें रिसर्च कर रही थी। उसमें कुल मिला के 3 टीम लीडर्स के साथ में 11 टीम मेंबर्स ने 21 ब्रॉडर इंडाइसेस पे काम किया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप इन वीडियोस को नीचे दी गई हुई लिंक में भी देख सकते हैं। इसी तरह मिलिंद जी के साथ मैंने निफ्टी पे भी काम किया है, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम निफ्टी पे चर्चा कह सकते हैं। मिलिंद सर जी, क्या आप मुझे निफ्टी का चार्ट दिखा सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. थैंक यू मिलिंद सर जी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों ये चार्ट ओपन करने को कहा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ किस तरह निफ्टी का फॉल हुआ है। ये तो सब सामने दिख ही रहा है और उसने कैसे 100 मेमा पे सपोर्ट लिया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 2008 में भी निफ्टी ने 100 मेमा पे ही सपोर्ट लिया था और लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ी थी। यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत देर के बाद मिलती है, जैसे कि 2008 के बाद अभी, यानी लगभग 10 सालों के बाद मिली है। इसे हम अभी निफ्टी शीट के साथ समझते हैं। सर, आप इन्वेस्टर की तरफ से मुझे कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। ओके। हाँ, संदीप जी, जैसे कि हमने ये स्टडी चालू किया था, तो सभी इन्वेस्टर के साथ जो जितना भी डिस्कशन हुआ मेरा, तो सभी का ये कहना था कि निफ्टी इतना स्मार्टली वर्क जैसे कैसे करता है, क्योंकि जैसे पीयूष सर बताते हैं कि निफ्टी स्मार्टली कंपनियों को ऐड करता है और रिमूव करता है। इन्वेस्टर को भी वैसा करना चाहिए। तो Yes, sir, yes. निफ्टी पूरे बाजार को कैसे आउट परफॉर्म करता है, ये आप हमें बताइए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं भी सोच रहा था पहले कि जब तक कि मैं प्रॉफिट टीम की ओर पीयूष सर के गाइडेंस में नहीं आया था, यानी पीयूष सर की छत्र छाया में नहीं आया था, तब तक मैं भी सोच रहा था निफ्टी चलती कैसे है। जिस तरह पीयूष सर ने हमें गाइड किया है और हमें सिखाया है, तो मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने में और आपको समझाने में मुझे कुछ तकलीफ हो जाएंगे। मुझे आपको निफ्टी का चार्ट दिखाने का मतलब ही यही था। जिस तरह हमने देखा निफ्टी लाइफ टाइम हाई से फॉल करके 100 मिमा पे आई थी, तो ये कैसे हुआ? तो ये कोरोना की वजह से हुआ है। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो ये कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है, कुछ आउट परफॉर्म तो कुछ लॉस कर रही है।
तो हम देखेंगे आउट परफॉर्म करने वाली कंपनी कौन सी है और लॉस करने वाली कंपनी कौन सी है। देखा जाए तो आखिरी 6 महीने में 80% रिकवरी हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? निफ्टी का लॉन्ग टर्म डेटा है, तो मैं आपको मेरा जो डेटा है लॉन्ग टर्म का उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट रो में, हाँ, तो उस लॉन्ग टर्म के बारे में देखा जाए तो ये मीनवाइल 20 साल का डेटा है, जो निफ्टी लगभग 18% से ग्रो हुई है और उसने आउट परफॉर्म किया है 20% से ग्रो होके प्रॉफिट को। जिस तरह से निफ्टी ने लास्ट 20 सालों में आउट परफॉर्म किया है, मतलब जब हम देख रहे थे कि वो बुल रन चल रहा था, लेकिन 10 साल का ग्रोथ देखा जाए तो निफ्टी ने कोई आउट परफॉर्म नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आखिरी 5 सालों में भी देखा जाए तो एज कंपेयर टू लास्ट 20 ईयर्स, तो उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। और 10 साल के हिसाब से तो हम इसको म्यूटेड ही कहे, लेकिन ये क्यों हुआ है? क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी इज म्यूटेड, इंडिया का जीडीपी भी म्यूटेड है। उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी में हमें चार्ट पे दिख रही थी, बहुत सालों में एक बार मिलती है, तो उसका फायदा हमें लेना चाहिए था। जैसे कि मार्च में हमें अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, लेकिन यही मेरा चार्ट दिखाने का व्यू था कि वो 100 मेमा पे सपोर्ट ले रहा था, तो हमें वहां पे चांस लेना चाहिए था, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहे हैं। हमारी प्रॉफिट टीम के स्टूडेंट ने तो ये किया ही होगा, क्योंकि पीयूष सर के गाइडेंस में हम सब अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से निफ्टी चल रही है। ये मैंने जनरल निफ्टी का बताया है, लेकिन ये तो मतलब 20 साल का डेटा था, 10 साल का डेटा था, या 5 साल के डेटा थे, तो इसकी वजह से तो मैंने ये जनरल बताया। लेकिन निफ्टी मतलब कुछ सारे कंपनियों का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग नहीं आया है, तो निफ्टी को ये रिकवरी कैसे हो गई? लाइफ टाइम हाई से फॉल होने के बाद जो 80% रिकवर हुई है निफ्टी, तो ये कैसे हो गई? तो चलो एक एग्जांपल की वजह साथ उसको देखा जाए। क्योंकि निफ्टी में भी देखा जाए तो निफ्टी की बहुत सारी कंपनीज लॉस कर रही है, सब तो प्रॉफिट नहीं कर रहे। उसमें देखा जाए तो निफ्टी का सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाली, मतलब 80% वेटेज रखने वाली जो कंपनीज है, जो 10 कंपनीज है, वो आउट परफॉर्म कर रही है। निफ्टी के कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस 20% से के नीचे है, लेकिन फिर भी निफ्टी रिट्रेट में लाइफ टाइम हाई के पास है। वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि जो 10 कंपनीज है जो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, वो उस 20% कंपनीज को अपने साथ खींच के चला रही है। इसी कारण की वजह से मेरे हिसाब से निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। और ये सभी कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आने के कारण भी ये जो वेटेज वाली कंपनीज है, ये उन निफ्टी को लाइफ टाइम हाई की तरफ लेके जा रही है। इसी कारण और बाकी जो 20% कंपनी है, उसमें देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज है जो लॉन्ग टर्म में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब जो 20 साल का डेटा देखा जाए, 10 साल का डेटा देखा जाए, या 5 साल का, तो इसमें भी बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सर खाली घेता है क्या जरा? हो और तो फिर वो निफ्टी में कैसी रहेगी? तो इससे हम सोच सकते हैं कोई और इमर्जिंग कंपनी निफ्टी में ऐड हो सकती है, लेकिन वो कंपनी कौन सी है वो आगे चल के मिलिंद सर आपको बता सकते हैं। सर इस तरह निफ्टी का काम चल रहा है। ओके। संदीप जी, निफ्टी में ये वेटेज जो बताते हैं, वो अगर हम हाँ, समान वेटेज ले लें तो क्या हो हाँ, जाएगा? और निफ्टी समान वेटेज क्यों नहीं लेती है? क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पोर्टफोलियो में भी हम निफ्टी जैसा काम कैसे करें। तो उस बारे में थोड़ा सा वेटेज का कंसेप्ट है, वो आप जरूर बताएं। जिस तरह सर हमने अभी बात की कि कंपनी, पूरी सारी कंपनीज एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब रिजल्ट एक जैसे नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह Q1 में कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जॉब्स एंड बिजनेसेस बंद थे, इसकी वजह से हमारा जीडीपी भी म्यूटेड था और वर्ल्ड जीडीपी भी पे भी उसका असर हुआ है। लेकिन निफ्टी 50 ने अपने लो से 80% रिकवरी कैसे की? तो इसके लिए हमें देखा जाए तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली कंपनी आउट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई के पास
आ गई है निफ्टी। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल के साथ देखा जाए तो सर जरा रिलायंस के ऊपर लेके जाएंगे तो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो रिलायंस है, जिसको देखा जाए तो मार्च में वो नियर अबाउट 900 के पास थी, पास ट्रेड करे। लेकिन इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि रिलायंस ने लाइफ टाइम हाई लगाया है, क्योंकि रिलायंस ने कुछ हटके सोचा, जैसे कि जियो का लॉन्चिंग हो या अदर इन्वेस्टमेंट लाइक फेसबुक या अदर इन्वेस्टमेंट। उनको रिलायंस का फ्यूचर उसी वक्त दिखा था जब बाजार कोरोना में डूबा था। इसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी भी देखने चाहिए कि जो कंपनी निफ्टी में ज्यादा वेटेज रख रही है, अगर वही परफॉर्म नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा। तो ये वेटेज का खेल है सर। अगर ये एक समान रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल लिया, रिलायंस निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, अगर वो परफॉर्मेंस करेगी तो वो निफ्टी भी परफॉर्म करेगी। तो उसी तरह हम हमारे पोर्टफोलियो में भी देख सकते हैं, जो अच्छी कंपनीज है उनको हम ज्यादा वेटेज देंगे तो हमारा पोर्टफोलियो भी हटके चलेगा। बहुत अच्छा संदीप संदीप भाई, आप जी। इक्वल वेटेज की बात कर रहे हो। हाँ मिलिंद भाई, जो संदीप भाई ने जो इक्वल वेटेज की बात बताई कि सबका हाँ अगर सर, इक्वल वेटेज हो तो हाँ परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, तो क्या करेक्ट आपने सर। इक्वल वेटेज का डेटा चेक किया है कि अगर सबको इक्वल वेटेज दिया जाए तो सही मायने में कितना धंधा डाउन आया है Q1 में, राइट? क्योंकि यस सर। Q1 के डेटा आपके पास है ना सर। Q1 का तो सेल्स हाँ कितना इफेक्टेड है, प्रॉफिट कितना इफेक्टेड है। मिलिंद भाई, हाँ ये हाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो जीडीपी -25% गिरा, करेक्ट सर। 23.9% जीडीपी डाउन हुआ Q1 में। करेक्ट सर। तो अगर करेक्ट सर। जीडीपी क्वार्टर 23.9, तो निफ्टी पे क्या इफेक्ट है उसकी? क्या सही में निफ्टी की कंपनी आउट परफॉर्मिंग है? क्या है यस डेटा सर। उसका संदीप। टोटल? नीचे नीचे एकदम नीचे ले लो मिलियन से Q1 के रिजल्ट। ओके, एक ही मिनट। ये संदीप भाई इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? क्योंकि इसका डायरेक्ट हाँ कनेक्शन आपका बरा जीडीपी के यस। साथ है। जिस तरह हमने हाँ देखा कि सर। अगर इक्वल वेटेज के बारे में हम हाँ जिस तरह हमने देखा कि हम इक्वल वेटेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो सर एक फक्त इकडे घ्या, एक 20च्या इकडे, हाँ बस। तो अगर देखा जाए तो ये जो सब कंपनीज का परफॉर्मेंस अगर सेम हम इक्वली काउंट करें तो निफ्टी अभी -8% टूटी है और प्रॉफिट 20% से टूटा है। ये तो मतलब इक्वल वेटेज के साथ हम देख सकते हैं क्वार्टर में घटा है। राइट, लेकिन अगर पर निफ्टी के जीडीपी साथ संदीप भाई साथ 23% गिरा, और हाँ आपका कहते हैं निफ्टी 50 की कंपनियों का धंधा खाली 8% गिरा। ये है यस आपका सर, कहने का मतलब? यस सर, ओके, यस सर, तो क्योंकि ये मतलब डेटा निफ्टी ही शो कर 50 रहा है। जीडीपी हाँ को आउट परफॉर्म कर रही है, बराबर ना? यस सर, राइट, एग्जैक्ट समझ में आ एग्जैक्ट। गया। हाँ साथ ओके, ही में अगर देखा जाए जिस तरह वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो रिलायंस का वेटेज निफ्टी में वेटेज सबसे मतलब क्या ज्यादा है। कहना चाहते हो संदीप भाई? एग्जैक्टली वेटेज का मतलब मतलब क्या? मतलब कंपनी का जो 100 ये जो निफ्टी में जो 50 कंपनीज है उसका कितना कंट्रीब्यूशन हाँ, है, तो उस हिसाब से वेटेज के ओके हिसाब ओके, से देखा जाए और निफ्टी को इफेक्ट करने वाला डेटा, तो निफ्टी -1.1% ही टूटा है, -0.1% टूटा है और प्रॉफिट -0.2% से टूटा है। तो हम एग्जैक्ट उस निफ्टी ने तो आउट परफॉर्म ही किया है, लेकिन ये कैसे किया है जो हमने अभी देखा कि रिलायंस या जो टॉप 10 कंपनीज है जो वेटेज रखने वाली उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। ओके। तो जैसे एक आपका डेटा दिख रहा है यहाँ पे, राइट? हाँ कि जैसे मेरे को जो दिख रहा है -0.1% से सेल्स गिरा है। अब इतना तो कुछ भी नहीं है, राइट? यस सर, लेकिन यस इसके सर। ऊपर जो डेटा है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जी कंपनी, बराबर हाँ है? जीरो हाँ परसेंट गिरावट दिख रही है। हाँ, क्योंकि 0%। हाँ अब क्योंकि सर असल उसका में इसका वेटेज। धंधा तो 37% गिरा है, पर इसकी हाँ कोई यस इफेक्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम होगा, ऐसा है? यस सर, यस एग्जैक्टली। जो भी मतलब अच्छा, क्वार्टर जो डेटा दिखा रहा है उसमें अलग दिख हाँ, रहा है और निफ्टी के वेटेज में अलग दिख रहा है, इसकी वजह से ये राइट। फर्क आ रहा है। अच्छा, बता सकते हो आप जी का कितना वेटेज था? पूरे हाँ निफ्टी बता में सकते। कितना वेटेज है जी का? है इसके अंदर?
बताओ ना हाँ मेरे है ना, को। अच्छा बताओ ना। निफ्टी का 0.27% है, 0.27% है। अच्छा अच्छा, 0.27% 27, खाली। यस यस। ओके, तो मतलब इसकी वजह से उसके धंधे गिरने से भी निफ्टी की अर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं आई, नो बराबर है? सर, नहीं सर, नहीं, यस ओके एग्जैक्ट। ओके। और टीसीएस का वेटेज 8-10% होगा, तो उसका धंधा हाँ, बढ़ने से निफ्टी पे पॉजिटिव इफेक्ट आती है, बराबर ना? यस यही कहना सर, चाहते हो आप? डन, यस सर, क्लियर सबसे सर, ज्यादा क्लियर। वेटेज रिलायंस का है। आप आगे बढ़ सकते हो। राइट। संदीप जी थैंक यू, क्योंकि इन्वेस्टर को भी यही करना चाहिए मेरे ख्याल से कि जिस कंपनी में भी ग्रोथ अच्छी हो रही है वह अपना पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ाते जाए। और जैसे यस पीयूष सर ने हमें एकदम, सिखाया है, जो कंपनी डिग्रोथ कर रही है वहां से हमें अपना वेटेज अगर इन्वेस्टमेंट है उसमें तो घटाते जाए। इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स का और निफ्टी का जो डाटा है वो बहुत हमें काम में लगने वाला है। थैंक यू सो मच। यस और अगला क्वेरी मैं आपको पूछूं यस सर, नो तो प्रॉब्लम। हाँ, तो सर बहुत से इन्वेस्टर डरे हुए रहते हैं कि निफ्टी का मतलब हम भी सुबह रोज उठते थे पहले तो हम देखते थे कि डाउ जोन्स क्या चल रहा है, फिर निफ्टी कल कैसे खुलेगा, कोई बोलता है कि गैप डाउन खुलेगा। तो ग्लोबल जीडीपी जो है उस हाँ, निफ्टी इन दोनों का क्या रिलेशन है, और इन्वेस्टर को किस तरीके से देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो ट्रेडर का क्वेश्चन, मत ट्रेडर टाइप, मतलब इन्वेस्टर का फेवरेट है कि जीडीपी कैसे परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि पूरे निफ्टी 8% से गिरा है, लेकिन अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.1% से गिरा है। उसी तरह जिस तरह वर्ल्ड जीडीपी चलता है, तो इसे मैं कुछ बताना, जिस तरह हम देख सकते हैं कि निफ्टी का और जीडीपी का रिलेशन आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो जिस तरह रेवेन्यू और प्रॉफिट का है उसी तरह जीडीपी और निफ्टी का है। लेकिन उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस कैसे करती है, निफ्टी का ही एग्जांपल ले लो। पिछले 20 सालों में निफ्टी ने 20+ रिटर्न दिया है दोनों जगह पे, मतलब सेल्स में, प्रॉफिट में। तो इस हिसाब में निफ्टी ने पिछले 20 साल में आउट परफॉर्म किया है। लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में देखा जाए तो, यानी लास्ट 10 साल या 5 साल में देखा जाए तो निफ्टी म्यूटेड फेज में है। मतलब जो 20+ % रिटर्न का एक्सपेक्टेशन था तो उसने पूरा नहीं किया, तो हम उसको आउट परफॉर्म नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी ही उस म्यूटेड है, तो वर्ल्ड जीडीपी ही आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से निफ्टी का भी परफॉर्मेंस उस 10 सालों में डाउन आया है, तो वो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो पिछले 5 सालों में देखा जाए या 10 सालों में अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि तो वर्ल्ड जीडीपी संदीप करंट का सिनेरियो देखा जाए तो कोरोना की महामारी तो है ही, इसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार फैला है। इस हिसाब से निफ्टी लाइफ टाइम हाई कैसे लगा सकती है? तो इस साथ ही में ऐसा भी है कि निफ्टी का सॉरी जी वर्ल्ड जीडीपी और निफ्टी पैरेलल चलते हैं। करेक्ट संदीप जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हम ये समझे कि अभी जो हर तेजी के बाद मंदी आती है और हर मंदी के हम्म, बाद तेजी आती है। ये तो जी आती है। अभी जो ये जो टाइम है वो हमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, बीज बोने का, जैसे फ्यूचर ने हमें सिखाया है। तो हम्म, क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है मंदी के लिए? हाँ वही तो हम बात कर रहे हैं कि मंदी में अगर हम बीज बोएंगे, मतलब मंदी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जैसे कि हमारा फार्मर करता है कि बारिश से पहले बीज बो देता है और उसकी राह देखता है, वैसे ही हमें करना चाहिए कि इस मंदी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग के बारे में। तभी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू संदीप जी। सभी इन्वेस्टर को जो जिसकी प्रतीक्षा रहती है वो है बुल रन। बेयर से तो सभी डरते हैं, प्रॉफिट फैमिली के स्टूडेंट छोड़ के, क्योंकि प्रॉफिट फैमिली में ऐसा हो गया है कि बेयर मार्केट उनको सबसे प्यारा लगता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो लास्ट जो अभी फॉल हुआ था इसमें सभी हमारे स्टूडेंट्स ने सबके गाइडेंस के अंडर अच्छे से अच्छे स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन किया। जब पूरी दुनिया डरी हुई थी तब प्रॉफिट फैमिली के स्टूडेंट आगे जा जाके जो उनके अच्छे सेक्टर लीडर्स, बेस्ट कंपनियां थी, वो उन्होंने बाय की है। एंड आज उनके पोर्टफोलियो 50-60% से भी ज्यादा है। तो ये जो हमारा डर भगाया है उसका क्रेडिट सिर्फ पीयूष सर को जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है सभी इन्वेस्टर का, कि मार्केट में बुल रन कब आता है सर? क्योंकि ये सब बातें तो हो गई, हमें कब सोचना चाहिए कि निफ्टी में बुल रन कब आ सकता है?
तो उसके बारे में हम थोड़ा बताएं, और अगले 10 साल में निफ्टी का टारगेट क्या रहेगा? ओके सर, लेकिन ये पीयूष सर ने तो हमें सिखाया ही है कि बुल रन ये तो आने ही वाला है। उन्होंने हमें पहले ही बताया कि बुल रन आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है। निफ्टी का अगर पिछले 20 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसने वो म्यूटेड है। तो यही समय था हमें कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की हमें जरूरत थी और हमें वेट करना चाहिए था। जो अच्छी कंपनी है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, वो उस कंपनी या उस इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके साथ हम ग्रो हो सके। तो अभी देखा जाए तो निफ्टी में बुल रन नहीं है, कह सकते हैं म्यूटेड फेज में है। लेकिन शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे तो बुल रन हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो हम जरूर बुल रन देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर के रिजल्ट में ही हमें पता चला है कि वर्ल्ड जीडीपी अगर म्यूटेड है, हमारा इंडिया का जीडीपी भी म्यूटेड है। क्वार्टरली रिजल्ट में ही उसका पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर वही हमने एग्जांपल देखा कि निफ्टी ने इतना डाउन परफॉर्म भी नहीं किया जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि जो वेटेज वाली है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, तो निफ्टी रिकवर भी हो गई है। तो हम देख सकते हैं कि बुल रन के मतलब बुल रन के रास्ते पर है हम, लेकिन सिर्फ हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही वर्ल्ड जीडीपी म्यूटेड फेज से बाहर आएगा तो इंडिया भी आउट परफॉर्म करने लगेगा और साथ साथ में ये बुल रन भी शुरू होगा। तो आपने पूछा था मुझे कि अगर 2030 तक क्या टारगेट है, तो हम कम से कम 28,000 या 30 के देख सकते हैं। तो पिछले 20 साल या का परफॉर्मेंस देख के संदीप वर्ल्ड जी, के आपने ये जो डाटा, कंपैरिजन में इंडिया का ग्रोथ हाँ 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 हाँ, तो आपने ये जो डाटा बनाया है, ये 2020 में जो हाँ आपने बताया था कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 9,500 से 10,000 तक निफ्टी को हम बाय कर सकते हैं, ये बाइंग लेवल आपने हाँ दिए थे। तो बाजार बराबर है। 9,500 से 11,000 के बीच में ही है। तो हाँ अगले 10 साल का जो टारगेट है वो जैसा आपने निकाला था, मैं थोड़ा हम्म नीचे लेके चलता हूँ, दो हाँ हजार हाँ तीस के लिए। उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टर को बताइए, आप कितना एक्सपेक्ट कर हाँ। सकते हैं? तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमें सिखाया गया है और जिस तरह से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, अभी तो वर्ल्ड जीडीपी ही म्यूटेड है। जैसे ही वर्ल्ड जीडीपी आउट परफॉर्म करने लगेगा तो सबसे तेज इंडिया भागने वाला है, क्योंकि वो सबसे ग्रोइंग कंट्री है। तो इसकी वजह से हम सोच सकते हैं कम से कम 28,000 टू 30,000 के बीच में रहने वाला है मार्केट, जैसे कि वो ओके। दिख रहा है। हाँ, ओके, ठीक है संदीप दैट जी। इज सर हैंड ओवर टू मिलिंग सर। हाँ ओके। संदीप भाई, आप चाहो उससे पहले अब हैंड ओवर हाँ करो, उससे पहले मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा डैशबोर्ड हाँ निफ्टी 50 को वापस बताओ तो। या हाँ चलेगा। जहां से आपने सारी निफ्टी के डेटा बताए थे, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which I got from this presentation. Number one thing, that sales have grown during last 20 years by 18% and profit have grown by 20%. This is very important. We should understand that on long term, Nifty sales of the Nifty companies were growing by 18% and hence profit were growing by 20%. But as Sandeep bhai explained you, during last 10 years, growth was not as seen during past. 12% ये is last 10 years growth and hence profit have grown only by 11%. तो ये समय हम ऐसा नहीं बोलेंगे जबरदस्त वेल्थ हुई है। होल वर्ल्ड इज इन म्यूटेड। जीडीपी दुनिया का जो 5% था वो 3% आ चुका है, तो दुनिया पूरी म्यूटेड है। 5 साल और खराब, खाली 9% का ग्रोथ निफ्टी की कंपनी का। तो एक सीधी बात है, अभी मिलिंद भाई ने पूछा संदीप जी को कि कब तेजी आएगी, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग बुल रन। मैं बुल रन तब एक्सपेक्ट करूंगा जब हमारे धंधे 10% से ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो घट ही रहे। रब ना 20 टू 15, 15 टू 9, यार अपटिक तो करो। When sales of our companies are going to grow by 10%, we will expect, yeah, now we are going to enter into bull turn, क्योंकि अब ये यू टर्न आया है। राइट, इंपॉर्टेंट डेटा जो संदीप भाई ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नोट डाउन कि सेल्स कितने परसेंटेज से गिरा है। लोगों को
अचंबा लगेगा, खाली -0.2%. GDP have fallen by 23%, but Nifty 50 sales have fallen by only 0.1%. तो आप क्या सोचोगे? 0.1% सेल्स फॉल में क्या 7,000 निफ्टी, 6,000 निफ्टी, राइट? यस इतने खराब डेटा नहीं है जितने लोग सोचते हैं, क्योंकि निफ्टी स्मार्टली काम करती है, निफ्टी वेटेज इंप्रूव करती है आउट परफॉर्मर में. So this is a very important data everybody should note down. Profits have fallen only by 0.2% and not by -20%. Right? So these were some important data. Note it down, and then yes, now Sandeep bhai, Milind bhai, you can continue your meeting. Okay, yeah. Thank you so much, Sandeep ji. Thank you, Piyush sir. थैंक Now यू I सर will एंड मिली start. Okay. Sir, can I move? Yes, yes. Hello. Yes, sir. Thank you so much. आज संदीप जी ने हमें बताया कि निफ्टी का स्टेटस क्या है. तो शुरू में हमें सबको ही डर लगता था कि निफ्टी 6,000 आ जाएगी, 7,000 आ जाएगी. यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते थे कि मार्केट इतना आ जाएगा, इतनी कॉल पे ले लो. लेकिन जैसे सर ने हमें गाइड किया कि हर लेवल पे हमें जैसा बाइंग कैसे करनी है, उस वजह से हम अच्छा बाय कर पाए. दूसरी चीज, निफ्टी का जो डाटा है जो संदीप जी ने पूरा एक्सट्रैक्ट किया है, वो शीट आप जरूर रेफर करें, क्योंकि उसमें 40-40 साल का डाटा है. ये जमा करने के लिए कम से कम साल भर 6 महीने तो लगते ही है. सो आप उसका जरूर फायदा लें. ये शीट हम जरूर स्प्रेडशीट आप सर को रिक्वेस्ट करके हम ग्रुप में डाल देंगे अपने. देन अगेन सभी Yes. स्टूडेंट ने जो मेहनत की है, वो अगर हम देखें तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि 11 स्टूडेंट्स थे और 3 टीचर्स थे. तो ये जो डाटा इन्होंने बनाया है, तो सभी इन्वेस्टर के मन में बेसिक एक ही सवाल है कि हमें उसका क्या लाभ है या कौन सा सेक्टर चलेगा. तो आपकी सबकी जो रिक्वेस्ट है या सबकी चाहत है कि वो क्या चलेगा वो बताइए. तो अगर हम देखें तो जैसे मिलिंद Q1 भाई, हाँ सर. एक पॉज कराऊं मैं यहाँ पे, एक यस सर. यस सर. थोड़ा मेरे को पूछना है आपसे, फिर आप शुरू Yes, sir. कीजिए. यस आपने अभी संदीप भाई के बारे में बताया कि 40 साल का डेटा इकट्ठा किया है अलग अलग कंपनी का. तो मतलब Yes, sir. कंपनी के भी डेटा आप देने वाले हो, इंडिविजुअल कंपनीज के डेटा? हाँ, इंडिविजुअल का भी डाटा सर शीट में है, उन्होंने एक ही शीट में बनाया उन्होंने. मुझे थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हो, इंडिविजुअल कंपनी मतलब क्या, किस प्रकार से? रिलायंस, समझो रिलायंस का डाटा है, गेल का 40 साल का डाटा हाँ, है, रिलायंस का 20-22 साल का डाटा है, जितना भी एनुअल रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट कर पाए हम लास्ट डिजिट तक. निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, तो 50 कंपनियों का हमने 10 साल का, 20 साल का, किसी का 25 साल अभी का, है किसी क्या का आपके पास वो डेटा अभी राइट नाउ? हाँ है ना सर. है इसमें? अच्छा अच्छा, एक मिनट, बता सकते हो मैं कोई भी बता- 2-3 कंपनी का? हाँ सर, ये अभी रिलायंस खोल रहा हूँ सर मैं आपके सामने. अच्छा, हाँ तो ऐसा हाँ, कितनी तो, कंपनी का डेटा है मिलिंद भाई? ये तो रिलायंस आई है, थिंक एचडी, इंफोसिस, कितनी कंपनी? 50 का है संदीप. आई थिंक संदीप ऑल 50 है ऑल ना. आई निफ्टी थिंक 50, पूरा निफ्टी हेलो 50 का है क्या? क्या हाँ बात है सर यार, पूरी किसने बनाया निफ्टी डेटा? 50 ये का आपने डेटा बनाया मिलिंद भाई? हाँ सॉरी. हाँ सर. आपने बनाया पूरे 50 कंपनी का? नहीं नहीं सर, ये पूरी मेहनत संदीप की है सर. उन्होंने रात दिन करके ये संदीप, पूरा डाटा बनाया. एंड गेल का डाटा तो 40 साल का है सर, 40 इयर्स. I should clap for you संदीप भाई यार, वंडरफुल यार, वंडरफुल. All 50 companies, whole life, whole history you are having, wonderful. Thumbs up for you. बहुत बढ़िया. और ये डेटा मिलिंद भाई आप हो सके तो सबको ये डेटा दे दीजिएगा, ताकि पूरी 50 sir. कंपनी की हिस्ट्री आपको मिल जाए. यस सर. बराबर ना? यस सर. यस. वंडरफुल पक्का यार, सर. वेरी वेरी गुड. हाँ संदीप भाई, हाँ, वंडरफुल. मतलब या यू कैन प्रोसीड नाउ. संदीप के बारे में सर, या संदीप के बारे में एक चीज और थोड़ा ऐड करता हूँ. हाँ. संदीप की ये हैबिट है कि अगर वो रात को बैठ गए 10 बजे 8 बजे खाना खा के, तो वो हाँ. डेटा करने बैठ गए तो वो सुबह उठेंगे 8 बजे जगह से. तो अरे क्या बात है. हार्ड वर्क संदीप इज हैविंग एंड मास्टरी है डेटा में, मतलब उंगलियों पे डाटा नाचता है. ओके, तो थैंक यू संदीप भाई. आपकी वजह से ये जो सबसे कठिन काम है, क्योंकि इतना डाटा ये सभी स्टूडेंट को मिलना और 40 इयर्स का. और मैं जानता हूँ खुद कि संदीप जी ने हर एक एनुअल रिपोर्ट से डाटा निकाला है, कोई वेबसाइट से नहीं निकाला है. तो हर एक कंपनी का Okay. इंडिविजुअल एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट सब देख के
जबरदस्त मेहनत संदीप भाई ने की है। सो थैंक यू। तो आपकी 50 कंपनी को बनाने में बहुत टाइम लगा होगा यार। मैंने देखा है L&T और हर कंपनी है। तो यस सर, ईच एंड एवरी कंपनी वो अराउंड संदीप जी कम से कम 3-4 महीने से रात दिन लगे ही रहते थे सर। अच्छा अच्छा, वेरी प्रोडक्टिव वर्क। हाँ संदीप भाई, वंडरफुल यार। ओके, गुड गुड। यस सर, या Thanks a lot, sir. Thanks a lot. ओके सर, थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सर। नाउ जो अभी जो प्रेजेंटेशन है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि ये Q1 के रिजल्ट्स कैसे आए, पहली चीज तो, और Q1 में क्या बढ़ा और क्या घटा। इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसको कौन से सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है और कौन सी इंडस्ट्री से दूर रहना है। तो अगर हम देखें तो जैसे हम देखें क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स, तो ये सभी रिजल्ट्स आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो ये सभी स्टूडेंट का डाटा है हमारे। जो भी अभी 11-15 लोग हम थे, तो ये सभी स्टूडेंट ने अलग अलग डाटा किया है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर एक ने अलग अलग सेक्टर पे जबरदस्त मेहनत की है। जैसे विजय जी ने बिरला ग्रुप पे की है, देन डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, पूरा निफ्टी खंगाल डाला है। और जो अच्छी से अच्छी कंपनियां है, प्रशांत क्रेजी है, इंडिया कंजम्पशन थ्योरी है, नितेश भाई है जिन्होंने महिंद्रा ग्रुप एमएनसी पे काम किया है, प्रवीण पटेल जी है जिन्होंने टाटा ग्रुप पे काम किया है। तो वैल्यू 20 जो ये सेक्टर में तो नहीं आते डायरेक्टली, लेकिन निफ्टी जो स्टडी करता है डीपर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए या प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए, तो उनसे कहीं भी कम नहीं है हमारा ये डाटा। और स्टूडेंट ने जो मेहनत की है उनके लिए श्रीनिवास जी है जिन्होंने बेसिक मटेरियल्स पे प्रेजेंटेशन दिया था, और उनकी डॉटर ने भी दिया था प्रेजेंटेशन। तो ये सारी कंपनियों का डाटा इन्होंने जबरदस्त मेहनत से किया है। तो आई विल थैंक टू ईच एंड एवरीबडी, क्योंकि ये लोग 1-1.5 महीने से कंटिन्यू मेहनत करते जा रहे थे। तो हम आते हैं Q1 पे, जिस सभी को अगर कुछ नोट लिखनी है तो जरूर लिखें, क्योंकि Q1 में जो बड़ा है, 2014 से हम देखेंगे कि फार्मा सेक्टर चल नहीं रहा था, लेकिन हम पिछले क्वार्टर से देखें तो फार्मा ने बड़ी जंप लगाई है। डीवीज लैब और बाकी के जो शेयर्स है, अगर आप देखोगे कि तो कोई इंडस्ट्री में एक हरा सेक्टर बढ़ने लगता है तो पीयर कंपनी भी बढ़ने लगती है। आप अगर फार्मा का सेक्टर खोलोगे तो आपको अगर उसमें आई थिंक 160 कंपनीज है, तो उसमें से 70-80% कंपनियां अभी दौड़ रही है। तो फार्मा का बुल रन चालू होने वाला है। फार्मा का जो वेटेज है निफ्टी में अभी 2% ही है, लेकिन मुझे लगता है ये कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स को ये और चैलेंज देके बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। तो अगले 5-10 साल फार्मा के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और पूरे लॉकडाउन में जो चला वो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मा चला। और अगला सेक्टर हम अगर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडस्ट्री से आता है और बायोकॉन इसमें सबसे बेस्ट कंपनी है। बायोटेक्नोलॉजी का महत्व हमें अभी वैक्सीनेशन और बाकी की चीजों में पता चल रहा है। इंडिया के हिसाब से दिस इज द बेस्ट ये कंपनी, क्योंकि ये सेक्टर में यही कंपनी बड़ी है। आज हमें लगता है कि इसका भाव इतना है या 5-6 साल हो गए अभी ब्रेकआउट आ गया, बट आई कैन एश्योर यू कि अगर भारत जैसे 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेडिसिन बढ़ रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक अमेजिंग इंडस्ट्री है और इसमें जबरदस्त वेल्थ बनने वाली है। देन मैच्योर इंडस्ट्री में अगर हम आए तो टाटा कंसल्टेंसी। जब हम सब लॉकडाउन में थे तो सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर से काम कर रहे थे, और टीसीएस के रिजल्ट्स ने और निफ्टी ने जो अभी ब्रेकआउट, निफ्टी आईटी ने जो ब्रेकआउट दिया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जबरदस्त चला है और उसने बायबैक तक के ऑफर ला दिए। तो ये जो सेक्टर है अभी फ्रेश एग्रेसिव बाइंग के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्टर में बोलूंगा पैकेज इंडस्ट्री का। तो इसमें हम नेस्ले और ब्रिटानिया को भूल नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन का मेरा एक्सपीरियंस देखूं तो मैगी के पैकेट मिलना भी मुश्किल हो गया था अलग अलग मॉल्स में। तो जिस तरीके से इनका एग्रेसिवली बिजनेस बढ़ा है और लोग डरे हुए हैं, लोग पैकेज फूड पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं रादर देन कोई ओपन चीजें खाने से अच्छा है। देन जियो का धमाका हम सबको याद है, टेलीकॉम सेक्टर पूरा टर्न अराउंड हो गया है। इसमें एयरटेल ने भी जबरदस्त काम किया है और जियो ने भी अच्छा काम किया है। तो टेलीकॉम के भी बिजनेसेस क्वार्टर 1 में जबरदस्त बढ़े हैं। हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो लाल पैथ लैब है, क्योंकि सब जगह जब मेडिसिन और ट्रीटमेंट चल रहा था तो लाल पैथ लैब के बिजनेस जोरों शोरों से थे और उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जबरदस्त आए हैं। तो हेल्थ केयर में भी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। देन एग्रोकेमिकल्स पे अगर हम आते हैं तो एग्रोकेमिकल्स में यूपीएल है, देन पीआई इंडस्ट्रीज है। जब पूरा इंडिया घर पे लॉक था तब सभी फार्मर्स काम कर रहे थे और ये जो केमिकल्स की दवाइयां है या क्रॉप्स के लिए जो इसेंशियल है उसमें कोई कमी नहीं आई थी। देन अगेन लाइफ इंश्योरेंस में भी अच्छा अपटिक दिखा है पूरे साल भर के लिए एंड क्वार्टर 1 के लिए भी।
तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे इंडिया का इनकम बढ़ते जाएगा तो लाइफ इंश्योरेंस है ये अब्रॉड डेवलप कंट्रीज में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अपने यहाँ वो मार्केट सैचुरेट बहुत कम है अभी। तो अब साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। दूसरी चीज रेस्टोरेंट का अगर देखें तो आपने मैंने आई एम अ डॉक्टर तो मैं कहीं भी जाता था हॉस्पिटल में तो आई वाज सरप्राइज कि एक जगह एम्बुलेंस खड़ी रहती थी दूसरी जगह डोमिनोज का पिज्जा देने वाला भी बाइक लगा के खड़ा रहता था। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जबरदस्त चली है और अभी जो उसका ग्रोथ है वो बहुत छोटा है मतलब अभी ये बड़ा सेक्टर बनने वाला है। एंड ब्रूरीज को कोई नहीं जानता जैसे ही मतलब सरकार ने ब्रूरीज के शॉप बंद ओपन किए तो ऐसा लगा कि इकोनॉमी को किसी ने धक्का दे दिया है। तो उस हिसाब से अभी अगर हम देखें एंड क्वार्टरली वन के हिसाब से देखें तो ब्रूरीज में जबरदस्त ग्रोथ हो गई है। देन ये जो सेक्टर मैंने 10 बताए हैं ये ऐसा सेक्टर नहीं है कोई भी कि ये 1-2 साल चलेंगे या फिर बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो ये डिकेड्स की स्टोरी रहती है सेक्टर्स की। तो फार्मा और ये 10 ही सेक्टर में आप जरूर इन्वेस्ट करें। कुछ सेक्टर से हम दूर रहने की सलाह देंगे। जैसे क्वार्टर 1 हमने देखा कि रियल एस्टेट बहुत डाउन जा रहा है, एडिबल ऑयल्स बहुत कम हो रहा है, ट्रैवल सपोर्ट सर्विसेज मतलब लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल सपोर्ट को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। माइनिंग इंडस्ट्री डाउन जा रही है। पेट्रोकेमिकल्स का पहले जो ये था साइज था वो कम होते जा रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स बहुत मतलब लॉकडाउन ही था तो वो व्हीकल्स ये नहीं हो पाए, सेल नहीं हो पाए। देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी बंद थी तो वो भी नहीं हो पाया। फाइबर एंड प्लास्टिक सेल नहीं हो पाए। गिफ्ट आर्टिकल्स एंड इंडस्ट्रियल गैसेस तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हमें काम में लगी उसका एक पर्पज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हमने देखा कि जैसे एमएनसी पे हमने सबने मेहनत की जैसे तो हमने ये देखा कि टाटा ग्रुप बिरला ग्रुप इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री का हाथ थामा है। जैसे ही देखें हम कि टाटा का जो भी पैसा आता है मुनाफा आता है तो वो टीसीएस से आता है बराबर। अल्ट्राटेक बिरला ग्रुप का जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट से आता है। तो इन्वेस्टर को भी बड़े जो बिजनेसमैन है जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि इज गुड बिजनेसमैन ड्यू टू विच ही इज गुड इन्वेस्टर। तो हम कॉमन इन्वेस्टर को भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के साथ ही अगर हम बने रहे तो हमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो ये पूरी पर्पज से एक्सरसाइज से हमने ये बहुत अच्छी चीज सीखी। तो ये सेक्टर्स आप जरूर नोट डाउन करें। आपकी इन्वेस्टमेंट में अगर गलती से भी डेकेइंग इंडस्ट्री में है तो आप उससे जरूर दूर रहें। संदीप जी आपको कुछ पूछना है, क्वेरीज अगर इन्वेस्टर की है? हेलो। हाँ सर, हेलो। जिस तरह, हाँ हेलो, हाँ बोलिए संदीप जी। कि इन्वेस्टर की जो क्वेरी थी तो उसके बारे में मुझे पूछना था। हाँ जी। 10 सेकंड। अगर मिलिंद भैया पिछले 1 महीने से प्रॉफिट ऑन इक्विटी स्टूडेंट ने जो रिसर्च किया है उसके बारे में आपने जो बताया तो क्वार्टर 1 के हिसाब से कौन से सेक्टर्स बढ़ेंगे, जो जैसे आपने बताया वही क्वार्टर 1 के रिजल्ट के हिसाब से निफ्टी 50 में कौन से शेयर्स आ सकते हैं आप बता सकते हैं, या कौन से आउट हो सकते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं? या डेफिनेटली निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है तो निफ्टी में कोई भी कंपनी आने के लिए उसको अच्छा ग्रोथ मेंटेन करना पड़ता है, वो अराउंड 20% का रहता है। तो अगर हम निफ्टी का डाटा अगर देखें तो निफ्टी में जो लास्ट की कंपनियां हैं वो सबसे पहले आउट हो जाएंगी, जिसमें हम देखते हैं कि जी सॉरी एक मिनट। हाँ हाँ, तो हम अगर देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट है, इंफ्राटेल है, ये आउट हो जाएंगी। गैस गेल का थोड़ा बहुत ये चल रहा है। टाटा मोटर्स आउट हो सकती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन निफ्टी से आउट हो गई है मार्च में ही। मेटल्स में टाटा स्टील उसमें से आउट हो सकती है। अगर हम देखें तो हिंदाल्को भी सर इसमें से आउट हो जाएगी। इसके बदले में जो डीवीज लैब है या नेक्स्ट 50 की जो कंपनियां हैं, डीमार्ट है, वो कंपनियां जो 20-20% से ग्रो हो रही है वो ये सेक्टर में आ जाएगी। वेरी गुड मिलिंद सर जी, बहुत अच्छा आपने समझाया है। मेरा और एक क्वेश्चन है, मतलब सभी इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है
ये कंपनियां पिछले 10 साल से बढ़ रही, क्या वो आगे भी बढ़ेगी या इनका ग्रोथ के बारे में कुछ आप हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? हेलो। एक ही मिनट। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? हेलो, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? हाँ, दिख रहा है मिलिंद भाई। हेलो, हाँ, ओके ओके, स्क्रीन दिख रहा है हाँ आपको? एक ही मिनट। या हाँ एक ही मिनट सर, ये जस्ट ये करता हूँ सर, ये वापस ओके, क्लीन स्क्रीन कर दो क्या सर? ये स्किप प्रीव्यू करके आया है। नहीं, क्या कह रहे हो मिलिंद भाई आप? हाँ ठीक है सर, अभी दिख रहा है ना? सॉरी। हाँ, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है आपका। ओके ओके सर। तो जैसा संदीप जी ने अभी क्वेरी पूछी कि कंपनियां 10-10 साल से अगर बढ़ रही है तो आगे भी बढ़ेगी क्या? तो मैं आपको कुछ डेटा पे लेके जाना चाहूंगा। जैसा अगर हम ये देखें कि डीवीज लैब का, अगर हम 10 साल का ग्रोथ देखें फार्मास्यूटिकल्स का, तो 10 इयर्स का सेल्स का ग्रोथ 19% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 15% है। आप जो भी कंपनियां अच्छी देखोगी उसमें प्रॉफिट ग्रोथ और 10-10, 20-20 साल का रहता है। तो ये डिकेडल स्टोरी चलने वाली है। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि एचडीएफसी इतना बड़ा है तो आगे बढ़ सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल हम एक अल्ट्राटेक का एग्जाम्पल ले लें। अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कंपनी है उसमें सीमेंट सेक्टर में सबसे लीडिंग कंपनी है। तो अल्ट्राटेक अभी अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। और भारत की जीडीपी अगर 2010 में सॉरी 2020 में 30 में 10 ट्रिलियन जाएगी, तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करेगा। जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी तेजी लौट रही है, तो सब उसका सबका फायदा ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो अल्ट्राटेक को होगा। क्योंकि अल्ट्राटेक जो तैयारी कर रहा है वो 2030 की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है जब भी इंडिया में बूम आएगा या निफ्टी 30,000 तक पहुंचेगी जैसा संदीप जी कह रहे हैं, तो उस हिसाब से अल्ट्राटेक वो टाइम पे पूरा जो इंडिया का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए रेडी रहेगा। और उसी सेक्टर में अगर हम देखें बाकी की कंपनी, तो बाकी की कंपनी वो टाइम एक्सपेंशन चालू कर देगी। तो बड़े बिजनेसेस जो रहते हैं उनका प्लानिंग 20-20, 25-25 साल का रहता है। तो इन्वेस्टर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जरूर होगा कि ये जो कंपनियां हैं 20-20, 25-25 साल आराम से चलेगी। जैसा हमें और भी एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हम देखते हैं कि बड़े ग्रोइंग सेक्टर में बड़ी कंपनियां बड़ी क्या होता है कि उनकी मोनोपोली हो जाती है। जैसा हम रिलायंस में देखते हैं तो रिलायंस ने हर फील्ड में मोनोपोली कर ली है। दूसरी जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे अभी कोरोना की मार पड़ी तो जो कंपनियां डेप बर्डन थी वो डेप 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 की वजह से मर गई या उनको किसी ने एक्वायर कर लिया। जैसे रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो है वो डेप बर्डन था, वो डेप सेंड नहीं कर पाया। तो बड़ी कंपनी बड़ी होती जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा के बड़ी हो जाएगी। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो जो सेक्टर का डिमांड है रिटेल वाला, तो वो तो चालू ही रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी एक आधी कंपनी पुरानी है जो 10-20 साल चली है तो वो आगे नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्री में भी हम देखें, वॉलमार्ट ने जैसे यूएस में ग्रोथ किया है, वैसे ही भारत में डिपार्टमेंटल स्टोर एक नई इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री 30% से ग्रो हो रही है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर 10% से भी ग्रो होती है और प्रॉफिट 20% से बढ़ते हैं, तो 10 साल में आपके पैसे 10 गुने हो जाते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमें कि इंडस्ट्री अगर कम होती है, मतलब पुरानी इंडस्ट्री है और जिसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो डीप सर्वे किया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे हम देखें कि भारत की जो इकोनॉमी है वो, जैसा पीयूष सर ने हमें ट्रेनिंग दिया था और हमने जो एक्सेल शीट बनाई थी वर्ल्ड इकोनॉमीज की, तो उसमें हमने देखा कि सबसे फास्ट ग्रोथ चाइना का था, यूएस का है और इंडिया का अभी फास्ट सबसे अच्छा कर रहा है। जीडीपी जो है दुनिया का सबसे अच्छा यूएस का है, उसके बाद चाइना का है एंड अभी हम 5 नंबर पे हैं। तो ग्रेजुअली जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो यूएस को जो फायदा हुआ या चाइना को फायदा हुआ वो पॉपुलेशन का फायदा हुआ और उनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी थी। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बढ़ने के लिए पॉपुलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है एंड वो पॉपुलेशन का बाइंग परचेसिंग पावर उनके पास रहना चाहिए। अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें, जैसे कि जनसांख्यिकीय विभाजन बोलते हैं, हम अगर 2030 की सिचुएशन एज ए इन्वेस्टर हम इमेजिन करें तो 2030 में भारत का पॉपुलेशन जो है वो 146 करोड़ हो जाएगा। दुनिया में 1 नंबर का पॉपुलेशन हमारा रहेगा। उसके बाद चाइना का पॉपुलेशन 139 करोड़ हो जाएगा
यूएस की जनसंख्या स्टेबल है, वो 36 करोड़ है, इतनी रहेगी। लेकिन आप इमेजिन करो कि 140 करोड़ लोगों के लिए जो जरूरतें लगेगी, जो चीजें लगेगी, वो उसके लिए जो इंडस्ट्रीज चलेगी वो जबरदस्त चलेगी। और हम अगर पिछले 15-20 साल का देखें तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास वाले अपर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और जो पॉवर्टी रेशो है वो भी काफी कम हो चुका है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी कंपनियां क्यों बढ़ेगी और हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। इन्वेस्टर जल्दबाजी में शेयर्स बेच देते हैं, वो गलत चीज है। अगर हम भारत का मीडियन एज देखें, एवरेज औसतन उम्र, तो वो 32 ईयर्स की है। चाइना का 43 ईयर्स है एंड यूएस का 39 ईयर्स है। तो सबसे यंग पॉपुलेशन वाला कंट्री अगर दुनिया में है तो वो भारत है। और यंग पॉपुलेशन जिधर है वहां कमाई हो सकती है। अगर आपने कोरोना के टाइम पे देखा तो इटली में डेथ रेट ज्यादा क्यों था? क्योंकि इटली में सीनियर सिटीजन ज्यादा थे, काम करने वाले नहीं है। आज भी लोग यूएस में क्यों जाते हैं? क्योंकि कंट्री बड़ी है, काम करने के लिए यंग लोग नहीं है। तो पॉपुलेशन होना ये कोई कर्स नहीं है, बड़ा पॉपुलेशन होना कोई कर्स नहीं है। वो अगर हम मैनेज कर पाए ठीक से तो वो बड़ी पावर है। तो भारत की इसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ है। और ये जो यंग पॉपुलेशन है वो भारत में काम करेगा और भारत में कमाएगा, और जो कमाएगा वो इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ तो खरीदी करेगा। तो ये तो जस्ट शुरुआत है। अगर हम और भी डाटा देखें, जैसा हम देखें कि 2030 में जीडीपी का ग्रोथ कैसे रहेगा, तो 2030 में इंडिया 6.7 जीडीपी से ग्रो करेगा कम से कम, चाइना का 6.6 एंड यूएस का 2.5। तो हम देखेंगे कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी बढ़ रही है, पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के पास स्पेंडिंग पावर है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें कि कोई कंपनी नहीं चलेगी। अगर एचडीएफसी आज जितना भी आपको लग रहा है कि 10 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, तो वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जनसंख्या के ऊपर है। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी दिन पहले, रिलैक्सो का एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा था। तो रिलैक्सो जो कंपनी थी, अगर हम 20 साल, अभी जिनकी भी उम्र हमारे 45-40 के आगे है, तो उनको याद रहेगा कि अराउंड 20 साल पहले हम जो स्लीपर पहनते थे वो सफेद वाली स्लीपर रहती थी, और उस पर 2 ब्लू कलर के स्ट्रिप्स रहते थे सिर्फ, जिसको हवाई चप्पल बोलते थे सिर्फ। रिलैक्सो वो बेचता था पहले। और आज हम एनुअल रिपोर्ट में देखते हैं कि रिलैक्सो ने 18 करोड़ के जूते बेचे हैं। लेकिन अगर आज के नए नए, हम जैसे पुराने एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में अलग से मजा है, नए एनुअल रिपोर्ट में पता क्या चलता है कि रिलैक्सो अब स्पोर्ट शूज बेच रहा है, स्पार्क्स करके प्रीमियम क्वालिटी की चप्पलें बेच रहा है, फ्लाइट करके बेच रहा है, फ्लाइट करके उनका ब्रांड है। और बहामा का तो हम टीवी पे ऐड देखते हैं कि सलमान खान उनका एंडोर्सिंग ये है। इसका मतलब है कि 20-25 साल पहले जो कंपनी सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बेचती थी, उसने प्रोडक्ट ही अलग टाइप के 4 कर दिए, 4 वैरायटी। क्यों? क्योंकि इंडियन, पहले इंडिया में भी क्या था, गरीब लोग और अमीर लोग, यही दो कैटेगरी थे। लेकिन अभी इंडिया में गरीब लोग, देन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये कैटेगरी हो गई है। तो हर एक कैटेगरी की नीड जो है वो अगर आपको सेटिस्फाई करनी है तो अलग अलग प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। तो 18 करोड़ अगर रिलैक्सो बेच रहा है सैंडल्स या चप्पल्स जो भी है, तो वो कुछ भी नहीं है, स्टार्ट है। क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी हार्डली 30-25% भी ये नहीं हुई, ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, क्योंकि अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। और रिलैक्सो का आउटसोर्सिंग जो है वो जबरदस्त है। अगर हम आदिदास से कंपेयर करें तो आदिदास का सेल्स 40,000 करोड़ के नजदीक है। सॉरी, फुटवेयर इंडस्ट्री का अगर हम सेल्स देखें, इंडिया का मार्केट देखें, तो वो 40,000 करोड़ का है। और अगर हम सिर्फ रिलैक्सो का सेल्स देखें तो 300 करोड़ है, 2,300 करोड़। तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। मतलब अगर रिलैक्सो ने आज तक 600 गुना भी पैसे करके दिए तो कुछ भी नहीं है। आगे का जो फ्यूचर है तो वो बहुत बड़ा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डिमांड आएगी कि नहीं, सप्लाई कहाँ से होगा। और चप्पल का अगर आप देखें तो रिसाइकलिंग रेट जो है, 1 साल में आदमी चप्पल बदल लेता है। पुराने अगर हम घर पे देखें तो घर में 1 या 2 ही जूते रहते थे। लेकिन अभी ऑफिस वेयर किसी का अलग है, किसी का स्पोर्ट्स शूज अलग है, किसी का पार्टी वेयर के शूज अलग है, बच्चों के अलग अलग वैरायटी में शूज अलग है। तो ये जो वैरायटी आ रही है वो इनकम की वजह से आ रही है, क्योंकि ये डिमांड हो रहा है, इसलिए सप्लाई भी सब कर रही है। तो ये जो सप्लाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फैक्टर है कि आपका पॉपुलेशन जबरदस्त है, इकोनॉमी अच्छी ग्रो हो रही है, डिमांड सप्लाई का जो गणित बैठ रहा है, लोगों की वैरायटी ऑफ डिमांड जो चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज और मैं आपको एक बताऊंगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारा जो इंडिया का मार्केट है वो अंडर पेनिट्रेट मार्केट है। जैसे कि पहले कैसा था कि शॉप में जाना पड़ता था हर एक चीज खरीदी करने के लिए, लेकिन आज हम घर बैठे ही सब चीजें मंगवा सकते हैं।
10 साल पहले हमें शोरूम में जाके फिर भाव करके ये सब चीजें करनी पड़ती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो भारत में आज 40 करोड़ लोगों के साथ भी साथ हाथ में स्मार्टफोन है, जिससे वो सब चीजें कभी भी और कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप अगर देखोगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएस का पॉपुलेशन 36 करोड़ है और भारत के 40 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में मोबाइल है और पॉकेट में मनी है। तो अगर सोचो कि आप 40 करोड़ लोग यूएस के वॉलमार्ट को दुनिया की एक टॉप कंपनी बना सकते हैं, तो हमारे डीमार्ट को बढ़ने से कौन रोक सकता है। और अगर ये भी आप 140 करोड़ का पॉपुलेशन 2030 में होने वाला है, तो इसमें कंपनी की कितनी बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल हम मिस कर जाएंगे अगर हम डरे कि ये शेयर इतना बढ़ गया है हम बेच दें, तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी। और 2022 तक का अगर हम डाटा ले लें तो 80 करोड़ इंडियंस के हाथ में स्मार्टफोन होगा। जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन में जुबिलेंट पिज्जा पिज्जा क्यों इंडस्ट्री चली, क्योंकि सब ऑनलाइन था। इन्फोएज जैसी नई कंपनियां हैं, वो आज से कम 10-10, 20-20 या 50 गुना तक डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये कभी भी हमें डर नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर को कि ये चीजें नहीं बढ़ेगी। तो और एक इम्पोर्टेंट चौथा जो पॉइंट है जो मैंने स्टडी किया था, क्योंकि ये कंपनियां क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल था कि ये कंपनी 10 साल बड़ी है, अभी मैं लूंगा तो नीचे तो नहीं आएगी और ये कंपनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। फिर अभी टीसीएस इतना बड़ा है तो वो आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो भारत का अगर हम हिस्ट्री पढ़े, भारत का इकोनॉमिकल हिस्ट्री भारत का पढ़े, जैसे मैंने एक स्वराज पॉल का बुक पढ़ा था कि इंडिया 1000 टाइम्स म्यूटिनी, तो उसमें उन्होंने बताया कि भारत के लोगों में पहले से ही बिजनेस का हुनर है। अगर हम 300 साल पहले जाए, ज्यादा नहीं, तो भारत का राष्ट्र था बिजनेस में। सिर्फ ये ब्रिटिश राज की वजह से हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो जैसे ही हम वापस अभी हम देख रहे हैं तो हमारी कंपनियां पूरी दुनिया में अच्छा काम कर रही है और भारत के बिजनेसमैन में खूबी है। हम किसी भी भारत के बिजनेसमैन को कभी कम नहीं समझे। अगर हम टाटा ग्रुप को देखते हैं तो भारत का बिजनेस का जो स्टाइल है वो कम खर्चे पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। अगर हम टीसीएस को देखें तो पूरी दुनिया दीवानी है टीसीएस की। टीसीएस का जो ग्रोथ देखेंगे एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, तो भारत से कम है, बाहर से ऑर्डर ज्यादा है, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। यहाँ के हाईएस्ट टैलेंटेड इंजीनियर्स है और लो कॉस्ट भी वो बिजनेस दे रहे हैं। एशियन पेंट का हम प्रोडक्ट देखे और भारत की इकोनॉमी देखे, हम आप बोल सकते हो कि भारत में गरीबी है, तो एशियन पेंट आपको 40 रुपए का पेंट बेच से लेके 2000 रुपए का लीटर का पेंट बेचता है। तो ये जो वैरायटी है, सस्ता और अच्छा एंड महंगा और प्रीमियम प्रोडक्ट भी बेचता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मुझे वो आर्टिकल में ये लगी पार्ले जी का, कि पार्ले जी ने पिछले 25 साल से सेम रेट 5 रुपए पे बिस्किट बेच रहा है, आज भी बेच रहा है एंड प्रॉफिटेबल है। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन उतना है, वो मास स्केल में बाय करते हैं, मास स्केल में बेचते हैं, भले मार्जिन कम रहे लेकिन प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो ये जो अगर हमने 4 पॉइंट पढ़े और सुने, तो मुझे कभी भी नहीं ये डाउट नहीं है कि भारत की कोई भी कंपनी, जैसे टीसीएस है, मैंने फार्मा में जो दिवीज लैब बताया, बायोकॉन बताया, ब्रिटानिया, नेस्ले जो है, लालपत लैब है, ये कंपनियां आज भी आपको अगर लगता है 10 गुना हो गई, तो मेरा ये गारंटी है कि ये कंपनियां कम से कम 100 गुना हो जाएगी। तो आप ये कभी ना सोचे कि ये कंपनियां बढ़ गई है तो आगे नहीं बढ़ेगी करके। आई थिंक संदीप जी इट इज क्लियर। अगर कुछ डाउट है किसी को तो वो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन कोई इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या है, क्या उसमें निवेश करना चाहिए? कोई एग्जांपल दे सकते हैं इमर्जिंग का कोई? हाँ डेफिनेटली। जैसा कि अगर हम देखें तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे कि लाल पैथ लैब है, जैसा मैंने ग्रोइंग, अभी जो Q1 का रिजल्ट आया था उसमें हमने हेल्थ केयर का इंडस्ट्री ग्रोइंग है ऐसा लिखा था, तो उसमें लालपत लैब है। तो भारत में ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत कम है, तो लालपत लैब भारत में इमर्जिंग सेक्टर में से आती है और इसका ग्रोथ जो है 14% है, मतलब इतनी खराब पीरियड में भी। तो अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी 10 साल में 10% से सेल्स ग्रोथ करती है और प्रॉफिट 20% करती है, तो वो 10 टाइम्स बढ़ती है। तो लालपत लैब यहाँ से 10 टाइम्स बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इसका भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि लालपत लैब आगे क्यों टिकेगी। अगर हम हेल्थ केयर पे एक्सपेंसेस देखें तो यूएस में 17% एक्सपेंसेस जो जीडीपी का है उनका, उसके हिसाब से अगर यूएस की जीडीपी आप देखो तो 24 ट्रिलियन का है, तो उसमें 17% वो हेल्थ केयर पे खर्चा करते हैं। साउथ अफ्रीका को हम बहुत पिछड़ा समझते थे,
लेकिन साउथ अफ्रीका जो हमारे से 2 गुना खर्चा, मतलब उनकी जीडीपी के 8.2% खर्चा हेल्थ केयर पे करता है, चाइना 5.3, और इंडिया का आप सोच सकते हो कितना है, 3.9% ओनली। तो ये जो खर्चा है वो अभी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो लालपत लैब को कोई मतलब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लालपत लैब बाहर की कंट्री में भी जाके बिजनेस कर रहा है। तो ये सेक्टर में जबरदस्त क्रांति करेगा। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर सच में इसमें फोकस करे तो 100 बैगर्स की जो हमारी ड्रीम थीम है उसमें ये कंपनी जरूर बैठ सकती है। और लो कॉस्ट ऑपरेशन में तो इनका कोई जॉब नहीं है। पिछले 4 साल से उन्होंने कोई भी प्राइस हाइक नहीं किया। अगर हम एनुअल रिपोर्ट डीप से पढ़े तो अगर मार्केट में टिकना है तो कॉस्ट कंपटीशन होती है। जो कंपनी 4 साल में बिना कॉस्ट इंक्रीज किए ग्राहक बढ़ाते जाए, उसके बाद उसके हाई क्वालिटी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो और 60% मार्केट तो अभी अनऑर्गेनाइज है, ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ये अगर मैं बताऊं तो ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें फर्स्ट कंपनी है जिसने आईपीओ लाया था। तो जो कंपनी फर्स्ट आईपीओ लाती है, प्रॉफिटेबल है एंड सेक्टर लीडर है, तो वो पक्का 100 बैगर्स जाएगी ही जाएगी, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट दिस इज एज पर माई स्टडी ओनली। तो आप ये डिसीजन आपके एडवाइजर को पूछ के ही ले, लेकिन मेरा रिसर्च ये कहता है। देन और एक एग्जांपल मैं आपको टीम लीज का देना चाहूंगा। टीम लीज जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री में से आती है। एंड वो भारत अभी टर्शरी सेक्टर में अच्छा कर रहा है। तो अगर हम ये इंडस्ट्री देखें तो फॉरेन कंट्रीज में जबरदस्त बढ़ रही है। और इंडस्ट्री का ग्रोथ भी अगर हम देखें तो 40% से इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। वो अमेजिंग है। मतलब ये इमर्जिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इनिशियली इनकी ग्रोथ 5-5, 10-10 साल जो रहती है वो 20%, 50, 30%, 40%, जो बजाज फाइनेंस में भी हुआ था। बजाज फाइनेंस की इनिशियल आप ग्रोथ देखोगे तो 50-50, 60-60% थी। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री का ये जबरदस्त फायदा रहता है। इमर्जिंग इंडस्ट्री अगर आप अर्ली स्टेजेस में जैसे छोटे बच्चे को कैच करें जो टैलेंटेड है, जैसे विराट कोहली को ही हम पिकअप कर ले टूर्नामेंट में कोई, और वो बड़ा बन जाए, उस तरीके की इमर्जिंग इंडस्ट्रीज रहती है। तो टर्शियरी सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी तो ये भारत में शुरुआत भी नहीं हुई है। यूएस में अगर हम डाटा देखें तो 70% वर्कफोर्स जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से आता है। जापान में 60% आता है, ताइवान 50%, और इंडिया में 20% से भी कम। तो 80% की अपॉर्चुनिटीज है। और इमर्जिंग सेक्टर में डेट फ्री कंपनी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो टीम लीज है वो टोटली डेट फ्री है और उसका ग्रोथ 40% से हो रहा है। तो हमें इमर्जिंग सेक्टर पे हमें हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली मिश्रण होना चाहिए कि जो कंपनियां आज भी मैच्योर इंडस्ट्री में 20-20% से ग्रो हो रही है और इमर्जिंग इंडस्ट्री में भी आ रही है। तो हमें अच्छा अगर ये मिश्रण रखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता है दुनिया में। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री पे मेरा ये कहना है। और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के बाद थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको कि हमें एक्चुअली जो स्टार्टअप्स है उनके ऊपर भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स ही बाद में जाके लिस्ट होते हैं और स्टार्टअप इनिशियली लॉस मेकिंग होते हैं। तो हमें बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे बैजूस ऐप था, ओयो रूम्स थे, एयरबीएनबी था, तो ये सभी स्टार्टअप थे। लेकिन ये स्टार्टअप जब लिस्ट होते हैं और उनका पुराना हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जैसे पीयूष सर ने हमें आईपीओ का स्टडी करना सिखाया है, अगर वो आईपीओ के टाइम पे आपको लगता है कि ये पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे जबरदस्त अच्छा है, जैसे एप्पल का था, जैसे सर ने बताया था कि एप्पल एक अच्छी और डिमांडिंग और ग्रोइंग इमर्जिंग इंडस्ट्री में है। तो एप्पल मतलब 4-4 गुना पैसा एक साल में करने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा जरूर कि आप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के साथ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज पे भी बहुत अच्छा फोकस रखें। यस संदीप। थैंक यू मिलिंद सर जी। तो हेलो, थैंक यू मिलिंद सर जी। हाँ सर, हाँ, तो आपने तो बहुत अच्छा समझा है। तो दैट्स इट, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं मतलब। ओके, तो अब हम क्वेरी सेशन, हाँ, अगर मतलब पीयूष सर की परमिशन रहे तो हम क्वेरी सेशन किसी को अगर ये करना है तो आई विल हैंड ओवर टू पीयूष सर। क्वेरी सेशन मिलिंद भाई चालू करे। उससे पहले कुछ डिटेल में आप लोगों ने जो ये डेटा बनाया उस पर मैं जरूर बताना चाहूंगा, फिर हम क्वेरी सेशन लेते हैं, क्योंकि Yes, आज sir. का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट? यस सर। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आप लोगों ने ये जो डेटा बताए, ये जो सब ग्रोइंग इंडस्ट्री निकाली है, ये वो है जिनके सेल्स बढ़ रहे हैं। मिलिंद भाई, एम आई राइट? करेक्ट सर, करेक्ट, 100%। So this thing should be clear. See, many people think, yaar, I am not able to search growing industry. Now, growing industry
search is very simple. You can fail searching growing industry when economy is booming, because each and every company will be growing. But Correct. during this downturn, I think searching growing industry should be easy. है कि नहीं मिलिंद भाई? करेक्ट सर, ये समय पे ग्रोथ ही नहीं होता है लोगों का. अब ये समय पे तो आपको अगर कोई ग्रोइंग मिल रही है मतलब ग्रोइंग है. हाँ, आप याद करो मिलिंद भाई, इन 2018 देयर वाज अ ह्यूज रैली. अब वो समय Correct, हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि सब बढ़ रहा होता है. आई कैन शेयर सर, मैंने देखा मतलब मैंने गलती की थी 2018 में बिफोर पास करने से पहले, और Right. मतलब खराब इंडस्ट्री में मेरा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जैसे ही आपका बराबर ग्रोइंग है. इंडस्ट्रीज का स्टार्ट किया तो पूरा पोर्टफोलियो हाँ, चेंज हाँ. हो गया और वहां से अब तक नए हाई सब चल रहे हैं. राइट. तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बराबर कि नहीं, ग्रोइंग इंडस्ट्री को ढूंढना. अगर हम ग्रोथ देखे, हमें तो क्या चाहिए पता है, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनके बैंक में पैसे आते ही जाए, मतलब जिनको Correct, sir. ढूंढने की जरूरत ना हो. वी आर इन द सर्च ऑफ दोस कंपनीज विच आर एबल टू डू बिजनेस. So it's very Correct. simple. If you got 4-5 companies which are able to do business from same sector, देखो Yes, sir. एक कंपनी का धंधा बढ़ रहा है तो मत मानो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है. If all your companies are able to grow business, then you can say yeah it is a growing industry. मिलिंद भाई थोड़ा लेफ्ट लो, तो लेफ्ट आपका ये जो डेटा है उसके लेफ्ट. हाँ सर ये ओके, यही ना हाँ सर? थोड़ा लेफ्ट, है ना? हाँ सर, यस सर. हाँ ये यहीं पे देखो, मेजोरिटी कंपनी मुझे जो दिख रही है वो फार्मा की है. सो इट्स Yes, सिंपल, sir. फार्मा इज ग्रोइंग का इंडस्ट्री, है ना? सब लाइन में डिविज, पिपका लैब, एपीएल मतलब एलम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा, नाटको फार्मा, बायोकॉन, मतलब इन सब के धंधे बढ़ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है दिस कंपनीज आर गुड, बट यस फार्मा इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. सो इट्स सिंपल. If you can search the industry where majority of the companies are able to grow their sales, that is the growing industry. So मेरा request है आप सब लोगों से, सारे लोगों से, focused on two very important factor. Number one factor is growth, जिसपे आज मिलिंद भाई ने, संदीप भाई ने काफी चर्चा की. Growth is very important. अगर आपकी इंडस्ट्री, आपने जहां निवेश किया है, if your companies will not able to grow their sales, forget profit. आपकी कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे. Why? Because they are not able to grow the sales. So sales are very very important. Number two thing, quality. Profits. एक ग्रोथ और एक क्वालिटी, ये दोनों की शादी होनी चाहिए. हस्बैंड वाइफ है, दो में से कोई Yes, एक sir. से काम नहीं हो सकता है ना? Correct, sir. तो एकदम इफ करेक्ट. ये फैमिली पूरा तभी होता है इफ योर पोर्टफोलियो इज फुलफिल्ड विद क्वालिटी एज वेल एज ग्रोथ. नाउ if you are having 10 companies with very high growth, but for example quality is not there, what will happen? जब भी फॉल आएगा आपका शेयर वापस 10 साल पुराने भाव पे आ जाएगा. क्यों? Because your company is with high debt, your company is not having good margins. For example, here GMR Infra, see, क्वालिटी नहीं है तो क्या हुआ? राजेश एक्सपोर्ट, राइट? क्वालिटी नहीं होगी तो क्या होता है इससे? If there will be no quality, your company will not able to make profit and you will not able to create wealth. So this is very important thing. Growth and quality, ये दोनों चीजों का संगम रखे. मिलिंद भाई ने, संदीप भाई ने जो चीजें बताई, इन चीजों को आज एक इंपॉर्टेंट दिन था. हाउ वी कैन कोरिलेट विद टुडेज डेज? Can anybody say why today's day was important? What were the main announcement of today? आज किस चीज का दिन था? Yes, anybody? Yes. आज कौन सी चीज? हाँ, निफ्टी फ्यूचर तो देखा ही होगा आप लोगों ने. निफ्टी का भाव क्या है वो भूल जाओ. आज आरबीआई पॉलिसी, अरे जय किशन भाई, दीपक भाई, वंडरफुल. आरबीआई पॉलिसी का दिन था एंड आज मेरा प्लानिंग था. See what my planning was today, that there were several queries from you all students since last 2-3 days and I was not able to revert your query. Today I have written in my diary that I will invest 2-3 hours to revert your query.
But as today RBI policy day was there, and today they have given wonderful data. बहुत बढ़िया डेटा था आरबीआई में. गवर्नर ने जो कॉन्फिडेंस बताया है इंडिया में, इंडिया के ग्रोथ में, काबिले तारीफ था. आई लव्ड टुडेस पॉलिसी. मैंने आज इनफैक्ट एक वीडियो भी अपलोड किया सारे डेटा को मिला के. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, रिसर्चर के लिए है. मिलिंद भाई वो वीडियो के डेटा देख लेना. मैंने हाँ, ऐप ये के सर, ऊपर देखा या, मैंने सर. मैंने पीडीएफ भी डाउनलोड अपलोड किया है ताकि आप लोग पीडीएफ देख सको. देखो ये Yes, सब sir. चीजों में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज पीपल वांट टिप. उनको इसी शेयर की टिप मिलने वाली है जो आज आरबीआई गवर्नर ने दी है. और हमें तो गवर्नर की स्पीच में से टिप मिल जानी चाहिए कि उन्होंने क्या बताया. राइट. करेक्ट सर. तो टुडेज डे वाज इंपॉर्टेंट डे. और जो भी चीजें अभी मिलिंद भाई ने बताई, मिलिंद भाई ने बोला ना फार्मा, बायोटेक, आईटी. अगर आपने आज की स्पीच सुनी हो गवर्नर की, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन में. हम क्वेरी सेशन रखे उससे पहले मैं आपको इन चीजों पे बताना चाहूंगा. राइट मिलिंद भाई, थोड़े ये डेटा बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट है. श्योरली सर, है ना? श्योरली, प्लीज सर. ओके यस सर. ओके. यस सर. सी, कल का हेडलाइन होगा, tomorrow's headline will be as per RBI GDP is going to fall by -9.5%. क्या होगा कल का हेडलाइन? 9.5% से जीडीपी इंडिया का गिरने वाला है इस साल, ऐसा गवर्नर का मानना है. पर वो ये हेडलाइन नहीं बताएंगे जो ये भी बताया था गवर्नर ने कि 10% का ह्यूज रिकवरी नेक्स्ट ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग. क्योंकि न्यूज जब आते हैं तो उन्हें तो आपको डराना है या एक्साइट करना है ना. तो आप डरोगे कब? जब ऐसे डेटा आएंगे. तो हो सकता है कल का न्यूज देख के लोग ये सोचे भागो यहां से शेयर बाजार में से, और मरने वाले हम तो. राइट. सी, Yes, sir. these were very important and confidence giving data. Inflation will be in control even for next year. That's very good news. GDP this year will be down by around 9.5%, but next year we are expecting very high recovery by 10%. Each and every data is important. I will not go in detail with each and every data, लेकिन इस तरफ मैंने IMF का भी डेटा रखा है. See, IMF is really expecting -5% GDP growth, right? पर RBI ने -9% दिया है. उसके सामने IMF is expecting next year. Our RBI is expecting 10% recovery next year. तो बाजार के जो बड़े इन्वेस्टर है ना, वो अभी से भाप लेते हैं. गवर्नर ने आज बहुत बढ़िया बात बताई. उन्होंने बताया कि जब कोरोना आया तो हम सब लोग डरे हुए थे. हमें आशा थी कि यस रिकवरी अच्छी आएगी. एक तूफान आया, उस तूफान में एक आशा थी. दीपक आशा का एक छोटी सी दीप जल रही थी, पर ये दीप जलती रही और बुलंद रही क्योंकि रिकवरी बढ़िया आई. राइट. रिकवरी कैसी बढ़िया आई, कैसे कह सकते हो? ये Q1 के डेटा है आपके सामने, आप देख सकते हो. अभी आपको मिलिंद भाई ने भी बताया, अभी एग्रीकल्चर इज गोइंग गुड. आपने देखा होगा Q1 जीडीपी में एग्रीकल्चर ओनली वाज पॉजिटिव. only and only agriculture was positive. You can see here, this was Q1 GDP data, that -47%. होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन तो उनके तो हाल बुरे थे. कंस्ट्रक्शन -50%. पर इनमें पॉजिटिव बातें भी बताई कि लेबर वापस आ रहे हैं. राइट. लेबर आर रिटर्निंग ऑन वर्क. खुद गवर्नर की ये स्पीच थी. मैं चाहूंगा आधे घंटे की स्पीच थी. हर रिसर्चर को उनकी पूरी स्पीच आज की सुननी चाहिए. राइट. सो ओवरऑल इट वाज 23% फॉल. बट हम देख सकते हैं कुछ चीजें ज्यादा अफेक्टेड थी, कुछ चीजें कम अफेक्टेड थी. देखो ये वर्ल्ड का डेटा है, वर्ल्ड डेटा. वर्ल्ड डेटा में आप देख सकते हो शॉक कहाँ लगे, झटके. वो हेवल्स की एड देखिए ना, वो घर पे आके अलार्म बजाते हैं और बाल खड़े हो जाते हैं, झटका, शॉक. तो दिस वर शॉक्स ऑफ कोरोना. यू कैन सी हाई शॉक्स किधर लगे? अप्रैल. You have seen, see, I am an investor of Titan.
पेज इंडस्ट्री, ये दोनों कंपनी में मेरा बरसों से निवेश है, मैं अभी भी उसको एक्यूमुलेट करता हूं, राइट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टाइटन का सेल्स 80% डाउन हुआ है कि नहीं। एरोस्पेस, फर्नीचर, दिस ऑल वर विद शॉक, और ट्रांसपोर्ट, ऑटोमेटिव, ये जगह पे झटके थे दुनिया भर में, इंडिया में नहीं। और ये सब वो चीजें हैं जहां पे कोई भी शॉक नहीं लगा। फार्मा, एज यू कैन सी, देखो मिलिंद भाई ने क्या बताया, फार्मा इज ग्रोइंग। ये दुनिया का ग्राफ क्या बता रहा है, फार्मा इज ग्रोइंग। फूड एंड बेवरेजेस, आपके गवर्नर ने खुद कहा है ये चीज, ये सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रहा है। देखो गवर्नर ने 3 चीजों पे बहुत बढ़िया बात रखी, ही फोकस्ड ऑन 3 थिंग्स, ना वी, ना डब्ल्यू, ना एल। व्हाट ही सेड, हम 3 प्रकार से बढ़े, 3 अलग अलग सेक्टर में हमें ग्रोथ को देखना चाहिए। सबसे पहला ग्रोथ, मैं आप लोगों से चाहूंगा, आपने स्पीच सुनी हो ना सुनी हो, प्लीज टेल मी, गवर्नर ने कुछ सेक्टर बताए कि ये सेक्टर को कोई इफेक्ट नहीं आई, दिस सेक्टर्स वर least affected, and hence these are the sector which are going to grow fast. बता सकते हो कौन से होंगे वो सेक्टर? Yes please, anybody, you can write it down in your comment box. अरुण कुमार जी, फार्मा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पहला सेक्टर था फार्मा का, जहां गवर्नर ने बताया कि दिस वाज लिस्ट अफेक्टेड। या विजय चौधरी जी, आईटी, एब्सोल्युटली, स्पेशलिटी केमिकल, करेक्ट। सी, एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में बताया उन्होंने, राइट। सो लेट मी मूव बैक टू स्क्रीन। ये सारे लिस्ट अफेक्टेड सेक्टर गवर्नर ने भी आज बात की, आप लोग भी जानते, देखो एग्रीकल्चर एंड दिस ऑल थिंग्स, पैकेज फूड, आशीष यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम 3 प्रकार से इकोनॉमी को ग्रोथ होता देखेंगे। नंबर 1 वो सेक्टर सबसे ज्यादा चलेंगे जो पेनाडेमिक में लिस्ट अफेक्टेड है, वहां अपना वेटेज बढ़ाए। दूसरी साइकिल उन सेक्टर की आएगी जहां पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आई थी। अब थोड़ी बहुत इफेक्ट और किस पे आई थी, बता सकते हो आप लोग, कौन से सेक्टर थे जहां इफेक्ट आई? यस प्लीज। सर्विसेज, है ना, सर्विसेज भी बंद रही, एब्सोल्युटली। तो ये वो जगह है जहां पे कुछ इफेक्ट आई, ये बाद में रिकवर करेगी। ये कब रिकवर करेगी? पहला जो सेक्टर हमने देखा, फर्स्ट सेक्टर, फार्मा, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, राइट, आईटी इंडस्ट्री, these all are least affected. These sectors are currently growing, but some sector would be growing from Q4. I will repeat, from Q4 we are going to see growth, and some sector were highly affected, जैसे ट्रैवल, टूरिज्म, जहां पे एक दूसरे का संपर्क में आना ज्यादा हो जाता है, राइट, अप्रैल, these all sectors are going to recover from Q1. तो एक बात गवर्नर ने सबसे बढ़िया बताई कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी रिकवरी फ्रॉम Q1 नेक्स्ट ईयर, एंड दैट विल बी अ वंडरफुल हाई ग्रोथ रिकवरी। तो घबराने की जरूर नहीं है, जो अच्छे सेक्टर थे वो अच्छे थे, बढ़िया रहेंगे। देखिए एनपीए के डेटा हम देख सकते हैं, ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो, सी दीज आर डेटा ऑफ 2015। स्ट्रेस्ड एसेट ऑलरेडी थे पर एनपीए नहीं थे, मतलब डेटा तो स्ट्रेस वाला था पर एनपीए आते नहीं थे। 2016 टू 2019 क्या हुआ, एनपीए के डेटा आने लगे बाहर। स्ट्रिक्ट स्ट्रेस तो पहले भी था, अभी भी है, पर ये एनपीए के रूप में बाहर आया। अब देखो दोनों घट रहा है, तो इससे आपको कहां पे क्या सोचना चाहिए? 2030 एचडीएफसी बैंक 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, बताओ, डर लगता है? इंडिया की 4 बैंक होगी जो ये प्रॉफिट पे पहुंचेगी, कौन सी होगी? यू शुड थिंक, राइट, वी नीड टू थिंक which bank can reach there. Good data, see these were the best data which I liked in today's presentation. 23.9% Q1 जीडीपी गिरा, हम जानते हैं, पर Q2 का डेटा ये आएगा ऐसा उन्होंने बताया है। What they are expecting GDP of Q2?
-10%, क्वार्टर 3 -3.2%। तो इफेक्ट इंडिया में कब तक रहेगी माइनस में? क्वार्टर 3 तक। क्वार्टर 4 क्या है, दिख रहा है कि जूम करूं? दिख रहा है। 17.8%। ये कोई नहीं बताएगा। कल का न्यूज़पेपर, इंडिया की इकोनॉमी गई, बराबर है। पर एज ए इन्वेस्टर वी शुड नो, हमें ये सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए कि हम कहां पे ऐड कर रहे हैं। बाजार जबरदस्त गिर सकता है, 6000 आ सकता है अगर ये जीडीपी -23 से और गिरता है। पर अगर जीडीपी रिकवरी की और है तो हम यहाँ से गिर सकते हैं, पर लिमिटेड गिरेंगे। 8000 10,000 इज लिस्ट मैक्सिमम। पर मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर कोई ये माने कि निफ्टी 18,000 नहीं आएगा 2025 तक, जरूर आएगा निफ्टी 8.8%, राइट, क्वार्टर 2। तो जबरदस्त होप वाला आज का प्रेजेंटेशन था और बाजार ने भी उन्हें थम्स अप दिया है। आपने देखा ह्यूज रिकवरी वाज सीन आफ्टर स्पीच। तो वो मत देखना जो लोग बताना चाहते हैं, वो देखना जो सही में आंकड़े हैं। मैंने और कई डेटा दिए हुए आज की वीडियो में, यू कैन चेक इट, राइट। दीज आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो आरबीआई गवर्नर ने वही बताया जो मिलिंद भाई, संदीप भाई ने डिस्कस किया है, जो आपके रिजल्ट में है। यही सब चीजों की बात हुई है। कॉन्फिडेंस रखो, हम सब लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? किसी को कोई शक? So let me open window for today's query session. For next 10 minutes, we are going to have query session. Okay, you can note down your queries in chat box and we will try to answer it from the collected data. Okay, let me check queries. Mayank bhai's query was there. Okay, सबसे पहला तो कई लोगों ने आप सबको धन्यवाद कहा है, मिस्टर सत्या, मिस्टर विनोद जी, मिस्टर दीपक, सबके लिए, सब लोगों ने आपके लिए ताली बजाई है। वंडरफुल वर्क, और मुझे सही में प्राउड है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। मयंक जी की क्वेरी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट प्लास्टिक? यस प्लीज, मिलिंद भाई। सर प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रोइंग नहीं है एक्चुअली। ओके, हाँ, तो ओवरऑल अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री देखें ना मिलिंद भाई, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को हम खाली प्लास्टिक नहीं देख सकते। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो बड़ी जो कंपनियां बन रही है, हम पुराना सेक्टर नहीं देखेंगे कि जो नॉर्मल प्लास्टिक था। करेक्ट सर। एग्रीकल्चर में जो प्लास्टिक की पाइप यूज होती है ना, दैट इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, बिकॉज इंडिया इज एग्री इकोनॉमी, है ना। और हम अभी इतने बहुत छोटे हैं, हमें और बहुत ग्रोथ चाहिए। इंडिया में अभी भी इरिगेशन इतना अच्छा नहीं है। तो यस, वी आर गोइंग टू सी गुड ग्रोथ इन कंपनीज लाइक एस्ट्रल पॉली, सुप्रीम इंडस्ट्री, वहां पे ग्रोथ मिलेगा, बराबर। पर बाकी अगर वो नहीं बराबर, बराबर मयंक भाई। और मेरा भी पैसा लगा हुआ है ये इंडस्ट्री में, नो नीड टू वरी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, शैला मैडम, योर क्वेरी इज व्यू सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज व्यू ऑन बैंकिंग। तो मिलिंद भाई, मेरे ख्याल से बैंकिंग तो हमने कवर कर लिया अभी, है ना। यस यस, बैंकिंग कवर कर तो बैंकिंग पे कोई डाउट मत रखो, या बैंकिंग पे डाउट रखना नहीं। देखो एनपीए बढ़ के ही आने वाले, तैयारी रखना। एनपीए अभी थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि कोरोना है, लेकिन सिल्वर लाइनिंग है, आने वाला समय सुहाना है। ह्यूज वेल्थ विल बी क्रिएटेड इन प्राइवेट बैंक्स, राइट। आशीष जी, so fruitful data for by Milind ji, yeah, definitely. Okay, next query. Let me check. दीपक शेलके, दीपक भाई, मेरे ख्याल से दीपक भाई आप पुणे के हो, मेरे ख्याल से, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरे ख्याल से पुणे की जो मीटिंग हुई थी उसमें हम दोनों ने एक सेल्फी ली थी। यस सर, एकदम बराबर है। ओके, तो दीपक भाई, मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई टॉपिक पे पूर्ण एक वीडियो हिंदी में सर प्लीज। ओके, हिंदी में नो प्रॉब्लम। देखो, सी सम पीपल इन दिस मीटिंग आल्सो दे वांट डेटा इन इंग्लिश, सम पीपल वांट इन पूर्ण हिंदी। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम हर लैंग्वेज में बनाएंगे। वी विल डू ईच एंड एवरी डेटा
in majority of the languages. I want data in Telugu, Tamil, Hindi, Gujarati, Marathi. पर उसके लिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा और आप सबको ये बातें लोगों तक ले जानी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज में, राइट? ओके, Srinivas ji, Shivani, they are saying excellent, explained by Sandeep Wagle and Milind Bhai ji. Yeah, definitely. Yogesh Gandhi ji, धन्यवाद सबका. Satya, hi sir, can we have summary in English please? Definitely Satya ji, I will try to give the summary in English. Okay. Ashish JP, big billionaire investor like Zunzunwala, Damani are not more investing in Nifty 50 or they are investing apart from this Nifty 50. Why? Ashish bhai, हर इन्वेस्टर का कुछ प्लान होता है ना, और ऐसा हरगिज नहीं है कि वो निफ्टी 50 में नहीं इन्वेस्ट करते हैं. असल में कोई देखता ही नहीं है निफ्टी 50. हमें निफ्टी 50 नहीं देखना चाहिए. वी शुड सी निफ्टी 500. निफ्टी 500 यानी 90% निफ्टी, राइट? है ना मिलिंद भाई? यस सर, करेक्ट सर. इसमें हमें ग्रोइंग, इसमें हमें ग्रोइंग और इमर्जिंग ही देखना है. जैसे राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन देकर जब ये किया था, इट वाज नॉट इन निफ्टी 50. अभी भी डिमांड जो है वो अब भी निफ्टी 50 में है. लिस्टेड तो 2-3 साल हो गए. तो हमें ग्रोथ देखनी चाहिए, नॉट कि कौन सा इंडेक्स कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ग्रोथ इम्पोर्टेंट है बस. राइट राइट, सही बात है आपकी. या सही बात है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई आपका. और थैंक यू सर. आखिरी स्लाइड आ गई है. थैंक यू मेरी ओर से भी. तो इट्स अ वंडरफुल जर्नी विद एवरीवन. कहिए मिलिंद भाई. हाँ सर, एज दिस इज लास्ट सेशन, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन पीयूष सर का दिल से करता हूँ, क्योंकि पीयूष सर की वजह से ये सब चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते एक्चुअली एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इतना नेटवर्क नहीं होता है, ना ही उसका कोई गाइडेंस होता है. तो ये जो भी एक्सरसाइज हम कर पाए, ये स्टूडेंट जितने सारे सीख पाए, हर एक एक्सरसाइज में से हमें अच्छी से अच्छी चीजें सीखने को मिली. आज भी जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, इसके पीछे भी पीयूष सर का ही इंस्पिरेशन था, क्योंकि सर हमेशा बोलते थे कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो. तो पावर ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या है वो मुझे ये पिछले 10-15 दिन में ज्यादा अपील हो गई. तो आई एम मच ग्रेटफुल टू पीयूष सर एंड संदीप जी, क्योंकि संदीप जी के डाटा के सिवा ये पॉसिबल नहीं था. And I will thank Jay Kishan ji, Ashim ji, and each and every member of Profit Family team. And मैं अपेक्षा यही करूंगा कि सर हमें ऐसे ही गाइडेंस देते रहे. Thank you so much sir. यार, जो आप लोगों ने जो डेटा जो पूरी जो टीम ने बनाया है, तो हमने एक ग्रुप तैयार किया था क्रिएटर्स का, है ना? Yes sir. और उसमें आप सब लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की और डेटा बनाया. तो हम लोग ने ये टेम्पररी ग्रुप बनाया था इन्हीं सब मीटिंग्स के लिए, राइट? पर हम ये आखिरी दिन है आज, लेकिन हम आने वाले 2-3 दिन में एक सब लोगों के लिए एक और सेशन रखेंगे, और वो सेशन का नाम रहेगा खाली पार्टी सेशन. लाइव तो पार्टी हो नहीं सकती है, पर ऑनलाइन हम सब लोग मिलेंगे और एक दूसरे से देखो फैक्ट की बात करना उस दिन. फैक्ट सही में आपको क्या कठिनाई आई डेटा में, क्योंकि ये नए लोगों को कठिनाई आएगी, बराबर कि नहीं? और उस दिन मैं चाहूंगा आप अपने फैक्ट डेटा रखें, क्या प्रॉब्लम आते हैं. देखो आप सब लोग नौकरी धंधे से काम करके घर पे आते हो, घर पे आके फैमिली भी होती है, तो उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको भी टाइम देना है. आपने कैसे अपना टाइम निकाला, हम ये चीज उस 20 मिनट के डिस्कशन में ये हम बातचीत करेंगे. तो तैयार रहिएगा. मेरे ख्याल से वी वुड बी मीटिंग ऑन मंडे. Right? Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Okay. Thank you so much. So thank you so much to everybody, and best of luck to everyone. 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 Thank you sir.